بیروت پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کا اسرائیل پر حملہ، ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کے بعد وسطی اسرائیل میں دھماکوں کی اطلاعات، مختلف شہروں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کو مشورہ دیں گے کہ انہوں نے اپنے میزائل داغ دیے، بس اتنا کافی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے۔ امریکی فوج الرٹ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بیروت پر حملے سے وہ خوش نہیں ہیں۔ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو فون کر کے کہیں گے کہ وہ جوابی حملہ نہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ترک اور برطانوی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ راولاکوٹ میں کلندم ایکشن کمیٹی کے کارندوں کی فائرنگ، 4 پولیس اہلکار شہید، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کلندم ایکشن کمیٹی کے مسلح کارندوں نے احتجاج کے نام پر جمع ہو کر فرائض سر انجام دینے والے پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ آئی جی پولیس آزاد جموں کشمیر کے مطابق واقعہ کسی پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں، پہلے اہلکاروں پر فائرنگ اور پھر سی ایم ایچ راولاکوٹ پر حملہ واضح دہشت گردی ہے۔ مسلح جتھے کو آزاد کشمیر کا امن، شہریوں کی سلامتی اور ریاستی نظم پر یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاستی ریٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ گلگت بلتستان میں کون مارے گا بازی، ووٹوں کی گنتی جاری، نظریں نتائج پر جم گئی، مختلف پولنگ اسٹیشن سے نتائج آنے لگے، ملا جلا رجحان برتری کا کھیل جاری، کسی حلقے میں تیر تو کسی میں شیر کی دھاڑ، کہیں پیپلز پارٹی آگے تو کہیں نون لیگ کے امیدوار زیر فہرست، آئی پی پی سمیت کئی جماعتوں کا بھی کئی پولنگ اسٹیشن پر پلڑا بھاری، آزاد امیدوار بھی کانٹے دار مقابلے میں شامل، کئی پولنگ اسٹیشنز میں سبقت لے کر بڑی جماعتوں کو ٹف ٹائم دے دیا، واضح اکثریت کون لے گا یہ حتمی نتیجہ پر منحصر۔ غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق اسکردو کے 3 نشستیں پیپلز پارٹی کی لے اڑی، جی بی اے 7 توقیر مہندی، جی بی اے 9 سے فدا محمد نشاد اور جی بی اے 10 سے راجہ ناصر علی کامیاب ہو گئے۔ جی بی اے 4 نگر میں پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر 7530 ووٹ لے کر جیت گئے، ایوب وزیری 6491 ووٹ سے دوسرے نمبر پر، جی بی اے 24 کی نشست آزاد امیدوار اسد شفیق جیت گئے، سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان بھی جیت گئے۔ گلگت بلتستان اسمبلی مجموعی طور پر 33 نشستوں پر مشتمل، 24 براہ راست منتخب ہونے والی نشستیں، 6 خواتین کے لیے مخصوص اور 3 ٹیکنوکریٹس کی نشستیں شامل۔ سیاسی اعتبار سے دیامیر اور اسکردو سب کی توجہ کا مرکز، 266 آزاد امیدواروں سمیت 396 امیدواروں نے قسمت آزمائی کی۔ پیپلز پارٹی نے 30، نون لیگ نے 22 امیدوار میدان میں اترے، استحکام پاکستان پارٹی کے 15، پاکستان مسلم لیگ کے 11 امیدوار مدمقابل، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے 6 امیدوار آمنے سامنے تھے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ ووٹرز کا جوش و خروش دیتنی رہا، نوجوانوں نے جمہوری عمل پر بھرپور حصہ لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج میں تاخیر کے الزامات، ترجمان شازیہ بری کا کہنا ہے کہ نتائج میں غیر معمولی تاخیر شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ فارم 45 کے فراہمی میں تاخیر حربے ناقابل قبول ہے، انتخابی عمل متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نتائج میں رد و بدل کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، عوامی طاقت سے انتخابی عمل کو متنازع بنانے والی تمام ہتھ کنڈے ناکام بنائیں گے۔
आज़ाद कश्मीर में 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजरीन की नशिस्तों पर फैसला आने वाली असम्बली करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने महाजर नशिस्तों से मुतल्लिक हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। एहतजाजी सियासत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। आइनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ेकार से हर ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि आइनी तब्दीली का रास्ता पार्लियामेंट और वोट है। आइनी एहतजाज के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं देता। वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो, जिससे कुछ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे वहाँ पे जो माजी में होते रहे उनको दोबारा उसी हाल में जो वहाँ पे माहौल है उसे ख़राब किया जाए। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इस तमाम मामले की जो बुनियाद है वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। चूँकि ये 20 से 22 लाख महाजरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम है और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की, हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये कश्मीर का अमन तबाह करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सरदार अतीक और नबीला अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि आइनी नशिस्तें कानूनी साजी से भी ख़त्म नहीं की जा सकती। मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हो सकते हैं। ये 12 नशिस्तें हैं जिन्हें बंद कमरे में बैठ कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। बिजली का यूनिट 3 रुपये है। आटे समेत तमाम अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मनसूबों में मुकामी अफराद के रोज़गार के लिए इक़दाम किए गए। ज़ुबानी बातों से बजाय अमली इक़दाम के सबूत सबके सामने हैं। किसी को भी मालूम नहीं कि जॉइंट एक्शन कमेटी किसने बयानिए पर काम कर रही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर पुलिस के कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तलाशी के दौरान दफ्तर के एक सब मशीन गन, 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद कर लिया गया। माहिरीन के मुताबिक दफ्तर से असले की बरामदगी इस बात का सबूत है कि ये टोला अवामी हकूक़ की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे है। सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करूँगा। मसाइल का बातचीत के ज़रिए असम्बली से हल निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अरकान ने तजावीज़ पेश की। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा, पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसले कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। महाजरीन नशिस्तों को बरकरार रखने से पीपल्स पार्टी को सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 2 इजलासों के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी के मुतअद्दिद अरकान का महाजरीन नशिस्तों के मामले पर पार्टी से वाज़ेह सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक इजलास में राय दी गई कि महाजरीन नशिस्तों के खात्मे या तादाद में कमी की हिमायत पर गौर किया जाए। वाज़ेह पॉलिसी ने अपनाई गई तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा मिल सकता है। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़रदारी हाउस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए। मुलाकात के बावजूद डेडलॉक बरकरार, इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद। बजट में सिंध की तरक्याती मनसूबों पर गौर। जाम खान शोरू की नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। अमन मुआहदे होने तक ईरानी असासे गैर मुंजमद होंगे, ना ही कोई पाबंदी ख़त्म होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान का रवैया अच्छा रहा तो हर मामले पर बात करेंगे।
हम मुआहदे पर दस्तखत के बहुत करीब हैं। मुआहदे की सूरत अमेरिका ईरान के साथ मिलकर अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को हटाने और तल्फ करने में मदद करेगा। हम लबनान को ईरान के साथ मुआहदे का हिस्सा बनाने के लिए भी इसरार नहीं कर रहे। अमेरिका का बदलता मौक़िफ़ मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के लिए ज़रिए जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक मुज़ाकरात में कुछ निकात पर अब भी इख्तलाफात हैं। अमेरिका को ईरानी हकूक़ तस्लीम करना होंगे। अमेरिका गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद ईरान के अरबों डॉलर जारी करे। इस्माइल बक़ाई ने कहा, अब नए हुर्मुज़ में हमारे तिजारती जहाज़ों पर अब भी हमले हो रहे हैं। ईरानी फ़ौज पूरी कुव्वत से साथ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल का ख़ुसूसी ख़त अब्बास अराग़ची को पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिफ की कोशिशों से ये बहरान ख़त्म होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ मुश्तबा कामनाई के लिए फील्ड मार्शल का ख़ास ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लाए हैं।